I've discussed all the uh, new labor laws, and today I'm going to discuss the old laws. As you know that the new laws अभी तक वो implemented not yet implemented, so still there is a chances that UPSC could ask a question from this section, the old section, because in last year it has been asked from questions like minimum wages act. So I'm trying to deal all the wages and bonus act in this video. Okay, so first our act is the payment of wages act 1936. What was the objective? The objective was straightforward, the timely payment of wages, okay, to the classes of worker. uh, Second, there are key definition which we have to understand. कुछ definitions इस act में दिए हुए हैं, जैसे कि employed person, who is employed person, कोई भी person जो कि employed है कोई factory कोई establishment या इंडस्ट्री में, so he is a employed person. न्यू वाले लॉ में हमने पढ़ा था कि establishment, all the establishments are person employed in that are employed person. Employed, those who are responsible for payment of wages, he is the employer. Okay, and the person who has ultimate control over the wages and payment, he is an employer. Okay, so in इसमें इस एक्ट में वेजेस को कैसे डिफाइन किया गया है, तो जितने भी रेम्यूनरेशन which is given to the employer in monetary term, it is wages. Okay, like basic pay, allowances, overtime pay, uh, bonuses, these all are included in wages. Also, there are few terms which are excluded, like the value of house accommodation amenities, employer EPS contribution, traveling allowance, special work expenses. These are not included in the wages calculation. Okay, where is it applicable? So first, कोई भी employee who is earning up to 24,000, when that this act is applied to him or her. Now, appropriate गवर्नमेंट, अगर कोई एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है, सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस एम्प्लॉय के अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट होगी, किस कौन से गवर्नमेंट के अंदर वो वर्क कर रही है, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी. ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट प्रोविजन, इसमें क्या क्या है? सबसे पहले, every employer is responsible for the payment of wages, okay, on time. Wages period must be fixed and paid for the period not exceeding 1 month. So जो भी पीरियड है, जो भी वेजेस का पीरियड है, वो एक महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मंथली. अगर वीकली है तो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडी कि 2 दिन के वर्किंग डे के अंदर उसे पे करना है. अगर फोर्थ नाइट है तो आफ्टर 2 days, एंड अगर डेली है तो एट द एंड ऑफ द वर्क. ऑल्सो, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट में 1000 पर्सन से कम पर्सन है, सो नेक्स्ट मंथ उसको 7th month, एक्सपायरी ऑफ 7 days ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उससे पहले उनको पेमेंट करना पड़ेगा. बट अगर किसी एम्प्लॉय किसी एस्टेब्लिशमेंट में 1000 से ज्यादा पर्सन है, देन wages must be paid before the expiry of 10th day of the next month. Okay, पेमेंट ऑन टर्मिनेशन, अगर कोई पर्सन टर्मिनेट कर दिया जाता है तो ही मस्ट बी पेड विद इन 2 working day ऑफ टर्मिनेशन. मोड ऑफ वर्क पेमेंट कैसा होगा? तो अर्लियर इट वाज करेंसी एंड current coins, but now checks, direct transfer to bank account is also mandatory for the payment. Now, there is a permissible deduction. Now, if an employer want to deduct money for or wages, uh,
fund from the wages, then he can do, but there is a limitation. Like if a fine is being imposed on the employer, अगर कोई फाइन लगाया जाता है तो that fine should not be more than 3%. ओके, और कोई अगर एम्प्लॉय 50 ईयर्स 15 साल से अगर नीचे है तो कोई भी फाइन नहीं लगाया जा सकता। सिमिलरली अगर कोई डिडक्शन एब्सेंटी फ्रॉम डिडक्शन किया जा सकता है। अगर कोई डैमेज होता है तो डैमेज का जितना कॉस्ट है वो डिडक्ट किया जा सकता है। एमिनिटीज या सर्विसेज प्रोवाइड करने में कोई एक्चुअल कॉस्ट जो लगा है वो डिडक्ट किया जा सकता है। एंड डिडक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योरेंस जो कि गवर्नमेंट अप्रूव करती है टाइम टू टाइम। ओके, नाउ देयर इज अ लिमिट ऑन टोटल डिडक्शन। कोई भी डिडक्शन 50% टोटल वेजेस से ज्यादा नहीं हो सकती। आपकी जो टोटल डिडक्शन अगर करनी है तो वो टोटल सैलरी से 50% ज्यादा नहीं। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव ये 75 है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज है so deduction can be extended up to 75%. Now every deduction has to be recorded। जितने भी डिडक्शन है उसको रिकॉर्डेड किया जाना चाहिए, और इंस्पेक्शन के समय दैट हैज टू शो कि उन्होंने वो कंप्लायंस किया है एंड दे डिडक्टेड एज पर द लॉस ऑफ द कंपनी और पॉलिसीज। ओके, द क्लेम एंड पेनल्टीज। एम्प्लॉय कैन अप्रोच द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है उसको वो एम्प्लॉय अप्रोच कर सकते हैं फॉर अगर उन्होंने कोई भी अनलॉफुल डिडक्शन किया है। एंड सो लेट्स टेक एग्जांपल, और उसको जितने प्रोविजन होने पर है। सो लेट वेज पेमेंट्स, अगर कोई फैक्ट्री है जिसमें 800 वर्कर है, ओके, ऑन फरवरी 15 को, तो ही शुड बी पेड एंड बाय मार्च 7th। सो अगर इफ फैक्ट्री में 1500 वर्कर है यानी 1000 से ज्यादा है तो वो नेक्स्ट मंथ फैब 10 तक बी पेड। अनऑथराइज्ड डिडक्शन, अगर कोई एम्प्लॉय 10,000 कमाता है और एम्प्लॉय ने उससे 5,000 रुपए डिडक्ट किया एज अ डैमेज, सो दैट डैमेज मस्ट बी कंसिडर्ड। तो ये 50% से ज्यादा हो जाता है तो द एम्प्लॉय कुड क्लेम द एक्सेस डिडक्शन बैक थ्रू द अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। फाइनल प्रोसेस द सेम वे कि आप जो भी फाइन ले रहे हैं दैट कैन नॉट बी मोर देन 3%। एंड अगर फाइन रिकॉर्डेड हो रहा है तो इट कैन नॉट बी डिडक्टेड आफ्टर 90 डेज। अगर फाइन डिडक्ट करना है तो वो 90 डेज के अंदर ही हो सकता है। ऑल्सो द 15 ईयर कि अगर कोई चाइल्ड है, चाइल्ड नहीं, कोई एम्प्लॉय है जिसकी एज 50% से कम है, सो उसमें कोई डिडक्शन इट इज नॉट अलाउड। नाउ अगर कोई वर्कर टर्मिनेटेड है 10 जुलाई को, सो विद इन 2 डेज उसकी जितने भी ड्यूज हैं उसको पे करना होता है। सो लेट्स से अगर कोई 10 जुलाई को टर्मिनेट होता है तो 12 जुलाई को वो हैज टू बी पेड। ओके, मेजर अमेंडमेंट क्या हुई? अर्लियर द सैलरी वाज द सीलिंग वाज 18,000, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 24,000। डिजिटल पेमेंट मैंडेटरी कर दिया गया है जितने भी ड्यूज और पेमेंट देने के लिए। सेकेंड, पेनल्टी एनहांसमेंट कर दी गई है। अर्लियर द पेनल्टी वाज 1,500, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज, वो बढ़कर 7,500 हो गया। ओके, so let's see some EPFO questions which has been asked in UPSC last year to last PYQs. First, under the Payment Wages Act, wages of establishment not less than 100 employees shall be paid। अगर 1000 एम्प्लॉय से कम है तो उनको कितने दिनों के भीतर पेमेंट करना है? तो विद इन 10 days। और अगर वो 1000 से ज्यादा होते तो सॉरी, wait wait, not less than, okay, the question, it is not less than 7,000, so it is 10। okay,
Next, according to Payment Wage Act 1910, no fine shall be imposed on employee who is under age of 15. And what is the maximum percentage of wages that can be deducted as a fine in a wages? 3% is the maximum wages. Okay. Second act is Minimum Wages Act. क्या ऑब्जेक्टिव है मिनिमम वेजेस की? एक मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हर एम्प्लॉयज को और वर्कर को मिले फॉर टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन एंड इंश्योर अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो की डेफिनेशन है जो इस एक्ट में दी हुए हैं। फर्स्ट, द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट ये लिस्ट जारी किया जाता है। अर्लियर इट वाज 18 लिस्ट बट इट हैज नाउ एक्सपैंडेड ओवर द टाइम। और इस सेक्टर में एग्रीकल्चर, एस्टेब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक वर्क सारे ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा किए गए। ओके। और गवर्नमेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कंसिडर कर दिए जाते हैं। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर द सेम डेफिनेशन, एम्प्लॉय वन और मोर एम्प्लॉय इन अ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। और जो अगर एम्प्लॉय वन और एम्प्लॉय के अपार्ट फ्रॉम दैट दोज हु इज मैनेजिंग, जो मैनेज कर रहे हैं और सुपरवाइजिंग कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, ही इज ऑल्सो considered as a employer. Okay, and a local authority contractor can be also be called as employer if they hire worker in a scheduled employment. Like employee कौन सा है? Employ any person who is employed for hire and for reward or reward to do any work. कोई भी वर्क जो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, मैनुअल है, क्लर्कियल है, इन शेड्यूल पेमेंट इंक्लूडिंग आउट वर्कर्स जो कि घर से बाहर के गिवन वर्क टू डू एट होम और आउटसाइड द प्रीमिसेस, एनी पर्सन डिक्लेयर्ड एज एन एम्प्लॉय बाय द गवर्नमेंट, ये सारे एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आते हैं। नोट कि मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस इट इज नॉट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। वेजेस, सो ऑल द रेम्युनरेशन, जितने भी मॉनेटरी पेमेंट में जो रेम्युनरेशन होते हैं और इन टर्म में मॉनेटरी पेमेंट्स में जो निकाल सकते हैं, दे ऑल आर रेम्युनरेशन पेबल टू एम्प्लॉयड पर्सन on the fulfillment of contract of employment including house rent allowances. It is called wages in this definition. ये exclude करती है पहला value of accommodation, लाइट, वाटर और मेडिकल जो बेसिक सुविधा है दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा एम्प्लॉयज को, इसको एक्सक्लूड करते हैं। ओके। प्लस जो कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में, ट्रैवलिंग अलाउंसेस में, कंसेशन में दिया जाता है उसको भी इसमें एक्सक्लूड किया जाता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज आई सेड, सेंट्रल वर्कर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट वर्कर अंडर स्टेट गवर्नमेंट। मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस इस एक्ट में डिफाइन तो नहीं है बट एक फ्लोर वेजेस है। फ्लोर वेजेस का मतलब कि एक बेयर सब्सटेंस पे प्लस जो नॉर्मल एजुकेशन, मेडिकल और अदर नेसेसिटी को पूरा करे उसको इसको डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया। ओके, नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स प्रोविजंस इन दिस? फर्स्ट, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स। गवर्नमेंट जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, लाइक स्टेट की गवर्नमेंट है तो स्टेट फिक्स करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल फिक्स करेगी। उन्होंने फिक्स करना है, मस्ट फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट विद इन इट्स जुरिडिक्शन। अपने जुरिडिक्शन के अंदर जितने भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो भी वर्क करें उनके लिए एक मिनिमम वेजेस उनको फिक्स करना पड़ेगा। और ओके, एंड इट कैन बी सेट डिफरेंट, ये डिफरेंट भी सेट किया जाता है फॉर डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट इंडस्ट्री, लोकेलिटी और डिफरेंट एज ग्रुप के लिए। ओके, अगर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हैव अ वेरी फ्री एम्प्लॉयज, लाइक उसके पास एस्टेब्लिशमेंट में लेस देन 1000 पर्सन वर्किंग, so government may differ fixing a wage rate, but agar once the establishment employed more than 1000 workers, then it can set, it should set a, must set a minimum wages. Okay, now
टाइप ऑफ वेजेस वेजेस कैसे हम डिवाइड करते हैं, तो एक फर्स्ट होता है टाइम रेटिंग, जो कितने वर्क काम किया, कितने घंटे काम किया। सेकंड वेज रेट, आउटपुट पर आउटपुट पे कितना पेमेंट किया जाएगा। गारंटीड टाइम में रेट मीन्स एक पीस ऑफ वर्क कितने घंटों में पूरा होगा उसके अकॉर्डिंग। एंड ओवरराइट, ओवर टाइम एंड रेट। ओके, अगर कोई पर्सन एक्स्ट्रा काम करता है ना। What are the important features provisions in this? First, fixation of minimum rates. गवर्नमेंट जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, लाइक स्टेट की गवर्नमेंट है तो स्टेट फिक्स करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल फिक्स करेगी। उन्होंने फिक्स करना, मस्ट फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट विद इन इट्स जुरिडिक्शन। अपने जुरिडिक्शन के अंदर जितने भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो भी वर्क करें उनके लिए एक मिनिमम वेजेस उनको फिक्स करना पड़ेगा। और ओके, इट कैन बी सेट डिफरेंट, ये डिफरेंट भी सेट किया जाता है फॉर डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट इंडस्ट्री, लोकेलिटी और डिफरेंट एज ग्रुप के लिए। ओके, अगर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हैव अ वेरी फ्री एम्प्लॉयज, लाइक के पास establishment में less than 1000 person working, so government may defer fixing a wage rate, but अगर once the establishment employed more than 1000 workers, then it can set, should set a, must set a minimum wages. Okay, now type of wages, wages कैसे हम डिवाइड करते हैं, तो एक फर्स्ट होता है टाइम रेटिंग, जो कितने वर्क हम किया, कितने घंटे काम किया। सेकंड वेज रेट, आउटपुट और आउटपुट पे कितना पेमेंट किया जाएगा। गारंटीड टाइम में रेट मीन्स एक पीस ऑफ वर्क कितने घंटों में पूरा होगा उसके अकॉर्डिंग। एंड ओवर राइट, ओवर टाइम रेट। ओके, अगर कोई पर्सन एक्स्ट्रा काम करता है देन। सो प्रोसीजर फॉर द फिक्सेशन, फर्स्ट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट या कोई भी एक कमेटी जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई है, ये फिक्स करती है मिनिमम वेजेस को। और ये दिस कंसल्टिंग प्रोसेस इंश्योर अ फेयर वेज डिटर्मिनेशन। ये जितने जो भी मिनिमम वेजेस डिसाइडेड होंगे, ये 5 ईयर के, नॉर्मली 5 ईयर्स के अंदर रिव्यू का होने चाहिए। इन जनरली स्टेट्स जो है वो 2 से 3 ईयर में करते हैं, बट एक मैक्सिमम पीरियड के 5 ईयर के अंदर मिनिमम वेजेस को आपको रिव्यू करना है और चेंज करना है अगर जरूरत है तो। कंटेंट ऑफ मिनिमम वेजेस में one more thing कि inflation linked adjustment like डिफरेंस अलाउंसेस, मोस्ट गवर्नमेंट डिफरेंस अलाउंसेस प्रोवाइड करती है फॉर लिविंग वेजेस इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करने के लिए। सो दैट इज ऑल्सो शुड बी इंक्लूडेड इन द रिवाइज सेक्शन। नाउ व्हाट इज द मिनिमम वेजेस? मिनिमम वेजेस कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक पे रेट and special allowance like cost of living that rises with inflation. All the inclusive rates, बेसिक पे और अलाउंस, ये सारे मिनिमम वेजेस में ऐड। व्हाट इज अ नॉर्मल वर्किंग आवर इन अ न्यू, हमारे नए लेवल में एज वी ऑलरेडी स्टडीड, उसमें 8 आवर अ डे दिया हुआ है, बट इन एग्जांपल्स फॉर दिस प्रोविजन वी कंसीडर 48 a week, typically 9 आवर अ डे। ओके, अगर पर्सन वर्क करता है वो लेस देन द फुल नॉर्म ड्यू टू द फेलियर ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड वर्क। अगर कोई एम्प्लॉय है जो फुल डे ना काम करके हाफ डे काम कर पा रहा है बिकॉज कि एम्प्लॉयर ने उसे कोई काम दिया नहीं है या कोई काम नहीं हो रहा है, देन वर्कर स्टिल पेड फुल, उसे पूरे दिन का पेमेंट वर्कर को देना पड़ेगा। उस टाइम में एज एन तो इस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस आपको देने। पेमेंट जो भी होना चाहिए वो मस्ट बी पेड इन कैश एंड कंसेंट बाय चेक और बैंक ट्रांसफर। ये मैंडेटरी कर दिया गया है इस प्रोविजन में। Compliance and norms of enforcement. The Act provide for appointment of inspector to check, register, and hear complaint. Employer must maintain a record of wages. एम्प्लॉयर को वेजेस रिकॉर्ड करके रखने हैं, जो भी
कॉम्प्लायंसेस हुए, नॉन कॉम्प्लायंसेस हुए, उन सबको एम्प्लॉयर को वो अपने पास इंस्पेक्टर रजिस्टर करके रखने हैं, एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्टर जब चेक करे तो आपको कॉम्प्लायंसेस शो करने हैं ना। ऑल द प्रोविजन एंड उसके एग्जांपल, लाइक द फर्स्ट मिनिमम वेजेस कॉम्प्लायंसेस, अगर पर्सन तो टेलर है, minimum wages for a tailor is set 500 per day, or employer cannot legally pay 4,000 as an agreement. Any contract to pay less than the minimum shall be null and void. वो null and void हो जाएगा. So 400 would be entitled to claim 100 rupees. वो claim कर सकता है कि 500 का अगर minimum wage है, 400 ही उसे मिल रहा है, तो 100 रुपए वो claim कर सकता है. Cost of living allowances, मिनिमम वेज अगर फिक्स है 10,000 प्लस जो डीएनएस अलाउंस है, अगर इन्फ्लेशन राइज कर जाती है और गवर्नमेंट इंक्रीज करती है डीएनएस अलाउंस बाय 500, देन एम्प्लॉयर आल्सो मस्ट पे द गार्ड ऑफ 10,500, जो 500 है वो इंक्रीजेस अमाउंट एम्प्लॉयर को पे करना है. ओवर टाइम पे डबल रेट, अगर 8 घंटे के लिए 300 पे किया जा रहा है, तो फॉर नेक्स्ट टाइम अगर उसने 8 आवर नेक्स्ट अगर करता है तो उसे 600 रुपये पे करना पड़ेगा. वर्किंग शॉर्टर आवर, अगर वो फुल फुल डे के लिए अवेलेबल था बट वर्कर ने किसी कारणवश पूरा वर्क नहीं दिया, तो एम्प्लॉयर हैज टू पे फॉर अ फुल डे. इन्फोर्समेंट, कोई भी अनस्किल्ड वर्कर है, अगर ही वाज पेड 250 पर डे while state minimum wage is 3 he can claim 100 rupees. अगर 250 है उसकी मंथली सैलरी और मिनिमम वेजेस डिसाइडेड 350, देन ही कैन क्लेम 100 रुपी शॉर्टफॉल. मेजर अमेंडमेंट क्या हुई है इन एडिशन में? सबसे पहले, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एडेड न्यूमरस एम्प्लॉयमेंट्स टू दिस शेड्यूल. बहुत सारे नए नए जॉब्स लाइक आईटी, रिटेल्स, डोमेस्टिक वर्क, ये सारे इसमें एडेड किए गए. डिविडेंड्स अलाउंसेस, इसको लिंक किया गया वेजेस से और कॉस्ट लिविंग इंडेक्स इन 1960 60 70. बहुत सारे गवर्नमेंट ने इसको रूल्स को, डिविडेंड्स अलाउंस को टाइम टू टाइम इसको अमेंड किया है. स्टेट अमेंडमेंट, अगर आप चेक करें तो स्टेट ने भी टाइम टू टाइम इसको अपडेट किया. पेनल प्रोविजन को बहुत सारे स्टेट ने इंक्रीज कर दिया, बहुत सारे स्टेट ने इसको डिक्रीज किया. द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एपीएफओ minimum wages act. The first, as per the minimum wages act, the appropriate government shall review the minimum wages rate at least, at least once every in 5 years. अगर कोई वर्कर ओवर टाइम करता है मिनिमम एक्स में, ही मस्ट बी पेड टाइम्स इन अ रेगुलर रेट ऑफ वेजेस. ये लास्ट टू लास्ट में पूछा गया था. एंड द मिनिमम वेजेस एक्ट अप्लाइज टू which of the types of employment? Only those listed in schedule employment. हालांकि ये अब चेंज हो चुका है, बट फॉर स्टडी पर्पस हम इसे देखते हैं. नाउ द अनदर वन इज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. पहले बोनस एक्ट है क्या इसको समझते हैं. कि स्टैट्यूटरी राइट है फॉर एम्प्लॉइज कि उन्हें एक शेयर ऑफ प्रॉफिट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक एनुअल बोनस उन्हें मिलना चाहिए. ये मैंडेट करता है एम्प्लॉयर को ऑफ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट पे करे एटलीस्ट मिनिमम बोनस टू एलिजिबल एम्प्लॉय. Okay, and govern the formula of calculating bonus based on profit product. इसके की डेफिनेशन क्या है? तो फर्स्ट, फैक्ट्री और अदर एस्टेब्लिशमेंट जो कि एक थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ पर्सन को एम्प्लॉय करते हैं. यहाँ थ्रेशोल्ड नंबर टाइम टू टाइम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, बट मेजरली इंक्रीज ही होता है. 1,000 मेंबर इट इज अ एस्टेब्लिशमेंट. ओके, establishment in public sector means a government company or corporation with at least 40% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट का उसमें होना चाहिए. अगर गवर्नमेंट 40% स्टेक से अगर वो कम है, देन इट इज नॉट बी कॉल्ड गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट. एम्प्लॉयर का, एज आई सेड, कि जो भी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग फैक्ट्रीज एट, he is a employee of that establishment. Employee, a person who is not earning exceeding 21,000 per month
he is eligible for the bonus. और इन दैट कि अगर वो कोई भी जॉब कर रहा है लाइक मैनुअल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजरी, मैनेजर वर्क, they all are defined getting low wages. अगर वो 21,000 से कम कर रहे हैं then he is considered as the employee. Okay, now salary and wages. Dearness allowance is also considered as salary for calculating bonus. Dearness जो allowances है ये भी bonus का part होंगे, and few things are excluded like overtime payment, house rent allowances, bonus, commission, ESI, retrenchment compensation, and gratuity. These are not included in that. Accounting year, as you know, 1 अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अकाउंटिंग ईयर होता है। एलोकेबल सरप्लस और अवेलेबल सरप्लस को समझते हैं। कोई भी प्रॉफिट कैलकुलेशन में पहले जितने भी सरप्लस होता है किसी एस्टेब्लिशमेंट में, उसमें से नेट प्रॉफिट किया जाता है माइनस जो डिडक्टेबल सम है लाइक डेप्रिसिएशन, डेवलपमेंट, डायरेक्ट टैक्स। इस सबको माइनस करने के बाद जो सरप्लस आता है उसको हम लोग कहते हैं अवेलेबल। उसका हम allocable surplus is the portion of available surplus allocated for distribution as a bonus. इसका it is 60% of available surplus. So जो माइनस डिडक्ट करने के बाद जो पेमेंट आया था अवेलेबल, उसका 60% होता है allocable surplus, जो कि हम एज अ बोनस एम्प्लॉयज को देंगे। बोनस मैंडेटेड बाय दिस एक्ट, बोनस को मैंडेट किया गया विच कैन बी either मिनिमम अगर प्रॉफिट ईयर लो रहा, और इस कैन बी लिंक टू हाई प्रॉफिट ईयर, बट ये भी एक लिमिटेड है जो हम लोग अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ना। एप्लीकेबिलिटी तो कोई भी फैक्ट और अदर एस्टेब्लिशमेंट जहां 20 से ज्यादा पर्सन आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और कोई विदाउट अ पावर, ओके, और कोई भी गवर्नमेंट दैट एक्सटेंड टू विद एटलीस्ट 10% बाय नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 10 से ज्यादा पर्सन आर एम्प्लॉयड उसको भी इस लॉ के अंदर ला सकती है। सो लेट्स से एग्जांपल, एक कंपनी हैड 22 एम्प्लॉयज इन 24, it comes under the act and must pay bonus for 24 if in 2005 अगर कोई कंपनी में फर्स्ट 20 से ज्यादा मेंबर थे और उसने अपना मेंबर जो डाउन साइज कर लिया, देन इन दैट सिचुएशन आल्सो ही हैज टू पे द बोनस। तो ये इस एग्जांपल में कि अगर उसने 22 एम्प्लॉय से 15 एम्प्लॉय कर लिया देन आल्सो ही हैज टू पे द बोनस। ओके, तो एलिजिबल कौन है, कौन कौन से पर्सन इस एलिजिबल है? तो जो whoever is drawing 21,000 month एलिजिबल फॉर, जो भी 21,000 या 21,000 से कम ड्रॉ कर रहे सैलरी, ही इज एलिजिबल फॉर बोनस। ओके, बट एज अ कंडीशन कि एटलीस्ट उसने 30 डेज इन अ ईयर वर्क किया हो उस दैट एस्टेब्लिशमेंट पे। वेरियस स्कीम क्या है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय की एक्चुअल सैलरी अबव द प्रिस्क्राइब्ड सीलिंग, बोनस सीलिंग से ज़्यादा है, तो जो हम बोनस मांगेंगे वो है 7,000 रुपीज। लेकिन अगर उस एस्टेब्लिशमेंट की नोटिफाइड किया गया कि उसकी मिनिमम वेजेस उससे ज़्यादा, 7,000 से ज़्यादा, ले से 8,000, तो 8,000 को हम एज अ बेस मान के बोनस कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज द एग्जांपल गिवन कि अगर पर्सन 10,000 बेसिक अमाउंट और डीए पर मंथ कमा रहा है, तो देन उसका जो बोनस होगा वो 7,000 पे डिसाइड होगा। लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री में मिनिमम वेजेस 8,000 है, देन उसका जो बोनस है वो 8,000 के बेसिस पे निकाला जाएगा। तो लेट्स से एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक वर्कर है जिसकी मंथली सैलरी 10,000 है और उसके मिनिमम वेजेस 6,500 है। तो मिनिमम वेजेस से ज़्यादा वो कमा रहा है, तो जो सैलरी कैप होगी वो 7,000 की होगी। 7,000
अब बोनस अगर हमें निकालना है तो 7,000 12 महीने के लिए, तो टोटल 84,000 उसकी सालाना सैलरी है। अब अगर मिनिमम वेजेस की बात करें तो मिनिमम एक कंपनी को 8.33% पे करना होता है। तो 34,000 33% 7,000 पर ईयर। अगर प्रॉफिट वारंट बोनस की वो ज्यादा कमा रही है तो एक सीलिंग है कि वो 20% से ज्यादा बोनस नहीं दे सकती। तो अगर 24% 84,000 तो 16,800। सो a worker earn less than 7,000 में 5,000, then actually 5,000 is used for annual 60,000। ओके, तो अगर कोई पर्सन मिनिमम वेजेस से कम ले रहा है तो मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग ही उसका बोनस पे किया जाएगा। नाउ मिनिमम वेजेस, एज आई सेड, एटलीस्ट आपको 8.3% सैलरी वेजेस देने हैं, वेदर और नॉन एस्टेब्लिशमेंट ने अर्न किया प्रॉफिट या ना नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8%, 8.3% का सैलरी वेजेस उसे मिनिमम बोनस उसे देना ही है। ओके, मैक्सिमम कैप कैप कितने की है तो 20%। तो कोई भी स्टैब्लिशमेंट किसी भी एम्प्लॉय को 20% से ज्यादा बोनस नहीं दे सकता। अगर वो इन द केस उसने ऐसा किया, देन द प्रॉफिट आर इंटरमिनेट, द बोनस परसेंट विल लाई बिटवीन 8.3%। अगर सरप्लस अवेलेबल है और अप टू द, तो वो उसके जो मिनिमम वेजेस है उसमें वो ऐड जाए। Now, available surplus have allocable surplus we have already discussed. Now, who are the employees who can be disqualified for the bonus, for the bonus payment, or can be dismissed by the employer? So अगर कोई एम्प्लॉय मिसकंडक्ट करता है, फॉरबिट करता है फॉर द अकाउंटिंग ईयर, लाइक कोई फ्रॉड करता है, वायलेंट वायलेंट बिहेवियर, प्रीमिसेस चोरी करता है या सबोटेज एम्प्लॉयर प्रॉपर्टी के लिए, तो ही कैन बी टर्मिनेटेड। टाइम पेमेंट कितनी है तो बोनस मस्ट बी पेड विद इन 8 मंथ ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर है उसके नेक्स्ट 8 मंथ के अंदर बोनस पेमेंट स्टैब्लिशमेंट को अपने एम्प्लॉयज को देनी ही है। इफ अगर कोई कंपनी न्यूली सब्जेक्टेड है इस एक्ट पे, तो उसके लिए एक थोड़ा सा कंसेशन दिया गया है। व्हाट आर द अदर प्रोविजन, जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, लाइक अगर कोई एम्प्लॉय हैज नॉट वर्क द होल ईयर, the bonus may be prorated for the period for actual work। ओके, अगर बोनस इन एक्सेस ऑफ लीगल मिनिमम, अगर जैसा मैंने बताया था कि एम्प्लॉयर फ्री टू पे मोर बोनस, बट द एक्सेस कैन बी डिमांडेड एज अ राइट, उसको राइट की तरह डिमांड नहीं किया जा सकता है। अगर एक्स ग्रेटिया हो जाएगा। अकाउंटिंग प्रोविजन सेम है कि डिटेल जो ग्रॉस प्रॉफिट है बैंकिंग का या अदर डोमेन्स का, they are technically use the accounting year, no stealing on eligibility count। जितने भी एम्प्लॉयर हैं इन द एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन बोनस एम्प्लॉय जितने भी हैं, इवन इफ his salary exceed 21,000 that it is outside the act eligibility। मतलब कि अगर कोई वर्कर है और उसकी सैलरी इवन his salary is more than 21,000, then also he is eligible for the bonus payment। Now, public sectors, if an establishment isn't a public sector, अगर वो public sector में are not profit oriented, so this act may not apply to that establishment। Okay, now there is few examples, minimum and maximum bonus as we discussed. So allocable profit sufficient to give 12% for the year. All the eligible by will get 12% for annual salary as a bonus। However, अगर profit dip करती है तो surplus allow only 5%, the company still must pay 8.3% minimum। और अगर हाई प्रॉफिट होती है तो 20%। सैलरी सीलिंग लिमिट कितनी है कि अगर कोई एम्प्लॉय अर्न करता है 25,000 बेसिक प्लस डीए में, डीए डीए सॉरी, 50 employees, company although the company covered the more than 20 employee,
the employee is not eligible for statutory bonus due to exceeding 21,000 ceiling. कि जितने भी employees है अगर 21,500 से ज़्यादा कर रहे हैं और they are not considered as a worker, so he the employer cannot pay in the bonus. न्यू एस्टेब्लिशमेंट के लिए एज आई सेड 5 ईयर का उनके पास सर्टन रिलीफ होता है जो दिया जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन एज आई सेड कि अगर कोई फैक्ट्री है उसमें वेंडलाइजेशन एम्प्लॉय करता है देन कंपनी कैन lawfully deny the bonus. Timing of payment 8 month. Now, what are the major amendment has been done? So first eligibility जो लिमिट था वो 10,000 से बढ़ा 21,000 कर दी गई है। The calculation ceiling was increased to 7,000. Inflations को ऐड करने के लिए भी एक प्रोविजन है बट वी जनरली एडिंग इन्फ्लेशन की जगह हम लोग परसेंटेज मेथड का यूज करते हैं 8.3% फॉर द मिनिमम एंड 20% फॉर द मैक्सिमम allocable surplus 60% of the available resources. So let's see the questions which has been asked. The Payment of Bonus Act 1965 applies to every industrial establishment in which how many percent? 20 or more person are employed. Second, what is the minimum bonus payable for a payment bonus? So कितने परसेंट का दिया हुआ है? 8.33%. अगर कोई एम्प्लॉय 18,000 पर मंथ ड्रॉ करता है सैलरी एंड हैविंग वर्क इन 100 डेज देन उसका बेसिक पेमेंट क्या होगा? देन देन उसकी जो सैलरी है वो 7,000 के कैप से ज़्यादा 18, सो हम जो उसका बेसिक सैलरी मानेंगे वो मानेंगे 7,000 प्रोडक्ट। ओके, अंडर द बोनस एक्ट एम्प्लॉय कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिसीव बोनस अगर वो फ्रॉड वायलेंट कंडक्ट या थीफ के लिए पाया जाता है। नाउ इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट मेन और वुमेन को इक्वल पे और इक्वल वर्क दिया जाएगा। प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स और एम्प्लॉयमेंट मैटर। नाउ रेम्युनरेशन में the total compensation है reward payable to a person including basic pay or salary और कोई भी additional involvement like say bonus allowances benefit ये सब रजिस्टर में डिफाइन में ऐड होंगे। टीम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर अगर कोई वर्क है in respect of skill effort experience responsibility required are the same when performed under a similar condition तो वो टीम वर्क है। लेकिन अगर कोई डिटेल क्वालिटी ऑफ वर्क आर इग्नोर्ड एंड वर्क इज ब्रॉडली सिमिलर करें, लेट्स से एक फीमेल और मेल वर्कर आर डूइंग द जॉब that are substantially the same or comparable in value. So when they are doing work, similar nature should get equal payment. अगर वो similar work कर रहे हैं, then he or she has to be paid similar. अगर वो similar nature का कर रहे हैं, then there can be a difference, but it has to be a rational one. Worker, any a man or woman employed in an establishment and employment for a hire and reward. सो कोई भी वर्कर जो स्किल्ड है अनस्किल्ड मतलब सुपरवाइजर टेक्निकल क्लर्क के वर्क के लिए हायर किया जाता है दीज ऑल आर कंसिडर्ड अंडर वर्कर employer the same definition the person having authority over the employment and payment of a worker in an establishment जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो वर्कर को एम्प्लॉय कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं उसको मिल appropriate government central government for central and state government for state employees important provisions फर्स्ट वन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कोई भी एम्प्लॉयर है अगर वो एम्प्लॉय करते हैं तो ही मस्ट इंश्योर कि उन्हें मेन और वुमेन दोनों को सेम वर्क के लिए सिमिलर नेचर का हो तो उसे सेम पेमेंट ही करना है द सेम नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन जो एम्प्लॉयर है वो कैनॉट डिस्क्रिमिनेट एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स कि अगर वो मेल है तो उसको करना चाहिए या फीमेल है तो उनको ही रिक्रूट करना चाहिए तो देयर शुड बी नॉट डिस्क्रिमिनेशन
unless अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर वो लॉ में उसको प्रोहिबिट किया गया है, देन he can discriminate in that, but law should be there. So any law, let's say exception, and there is an exception, like if any law bar women from certain jobs, like night shift अभी allowed नहीं था, but in new laws we have started कि वो allowed है ना. एडवाइजरी कमेटी एक्ट प्रोवाइड करता है एक गठन का, एक कमेटी के गठन के लिए, जो कि इंश्योर करेगा कि इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन इंडस्ट्री एंड ऑक्यूपेशन. ओके, सो इस एडवाइजरी कमेटी का बेसिक वर्क क्या है कि वो इंश्योर करेगी इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन. अथॉरिटी फॉर कंप्लेंट, द appropriate government can appoint officer, labor commissioner as an authority, इसलिए to hear or decide the complaint regarding the violation की equal pay or discrimination provision company or establishment is running. मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, एम्प्लॉयर को ये बिल्कुल जरूरी है कि वो मेंटेन करे एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, विद डिटेल्स कि किस एम्प्लॉय को कितना रेम्युनरेशन दिया गया, along with the gender wise breakup in a prescribed format. Now, government may appoint inspector to enforce the act, and they have the power to enter the premises, examine the register, interrogate employer. An employer has to they ensure the inspector has to ensure that no sex-based pay differential exists in that establishment. Penalties क्या क्या हो सकती हैं? सो इफ अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इक्वल पे और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को, then he can be punished up to 10,000 रुपीज, और या तो 6 मंथ का पेमेंट, 6 मंथ की जेल हो सकती है, सॉरी फॉर दैट. ऑफेंसेस बाय द कंपनीज, अगर इफ कोई कंपनी एक ऑफेंस करता है, द पर्सन इन चार्ज इज डीम्ड लाइबल unless they prove the offense was without their knowledge or due diligence. अगर कोई कंपनी ऑफेंस करती है विदाउट नॉलेज की, तो कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि दैट वाज हैपन without their knowledge. Now, complainants under this act are typically tried by judicial magistrate of first class. और इसमें एक और प्रोविजन है कि कोर्ट कैनॉट टेक cognizance of an offense except on the complaint made by the appropriate government advisor. मीन्स कि जो कंप्लेंट है वो कोर्ट उससे नहीं ले सकती है, लेकिन अगर कोई वो कंप्लेंट कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या ऑथराइज ऑफिसर करती है, then only court can intervene according to this provision. Overriding effect, ओवरराइडिंग इफेक्ट मीन्स मेन और वुमेन इक्वली पे होगा, और जहाँ भी लॉ है जहाँ वुमेन को कम पे किया जा रहा है फॉर द सेम वर्क, वहाँ ये ओवरराइडिंग एक्ट जो ओवरराइड हो जाएगी. दिस एक्ट इज अप्लाई broadly to all form of employment. It is not restricted to organized organized public. It is uh, for the all. Uh, let's set an example. Equal pay for equal scenario. Male is paid 20,000 and female is paid 18,000, and it is a clear violation of act. Promotion bias. If a qualified woman factory worker is overlooked due for the promotion to supervisor in favor of less qualified. Now, what are the important features provisions in this? First, fixation of minimum rates. गवर्नमेंट जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, लाइक स्टेट की गवर्नमेंट है तो स्टेट फिक्स करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल फिक्स करेगी. उन्होंने फिक्स करना मस्ट फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट विद इट्स जुरिडिक्शन. अपने जुरिडिक्शन के अंदर जितने भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो भी वर्क करें उनके लिए एक मिनिमम वेजेस उनको फिक्स करना पड़ेगा. और ओके, इट कैन बी सेट डिफरेंट, ये डिफरेंट भी सेट किया जाता है फॉर डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट इंडस्ट्री, लोकेलिटी और डिफरेंट एज ग्रुप के लिए. ओके, अगर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हैव अ वेरी फ्री एम्प्लॉयज, लाइक के पास एस्टेब्लिशमेंट में लेस देन 1,000 पर्सन वर्किंग,
So government may differ fixing a wage rate, but अगर once the establishment employed more than 1,000 workers, then it can set must set a minimum wages. Okay. Now टाइप ऑफ वेजेस कैसे हम डिवाइड करते हैं, तो एक फर्स्ट होता है टाइम रेटिंग, जो कितने वर्क हम किया, कितने घंटे काम किया। सेकंड वेज रेट, आउटपुट और आउटपुट पे कितना